Capital employed is bifurcated into two. Okay, एक होती है इक्विटी और एक होती है डेट. That. So basically इक्विटी माने कैपिटल. Okay, let me reframe this. अरे लेकिन बट यहाँ पर इन्होंने हमें ऐसा नहीं बताया ना, कैपिटल इज तो इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. Yeah, both. Capital is EQ plus. So when I say capital is basically owner's fund. Okay, but when we are understanding capital employed, that means the amount of funding the business has got. So capital employed is nothing but funding for business. Now this particular funding can be out of self funds or borrowed funds. Okay. और self funds लेकिन क्या? Equity हो गया. Okay. So capital in terms equity, preference, share warrants, फलाना टिमकाना. Okay. बाद में क्या आता है? Reserves and surplus. Reserves and surplus, correct. Okay. So this is self funds. The situation with self funds is what? Most important criteria for identifying self funds is what? It is from your own self. No. It is. इसको बोलते हैं residual interest. Self funds का major criteria residual interest. What does residual interest means? लेकिन if a company goes into bankruptcy or anything, or for the matter, even if it earns profit, whatever is the last bottom line is with whom? Is with these guys. So that amounts to self funds. भले बिजनेस ने लॉस किया, बराबर, पर इंटरेस्ट तो पे आउट होगा. सो एन आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो is not guaranteed. That is residual interest. Perfect. Residual interest माने self funds. Self funds can be in the nature of capital and reserves and surplus. Okay. Now coming to borrowed funds. Borrowed funds लेकिन क्या? जहाँ से उधारी ली है. Loans, bank loans basically. So this can be categorized into debt. Okay. डेट को क्लासिफिकेशन लॉन्ग टर्म आ सकता है और डेट को क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म आ सकता है. ओके. आइडियली व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर रिटर्न, ओके, दिस ये हम लोग कंसिडर नहीं करते. अच्छा. बट वो भी चीज़ बता दो, दिस इज नेवर टू बी कंसिडर्ड बिकॉज जब तेरा शॉर्ट टर्म डेट होता है तो शॉर्ट टर्म डेट is used for financing of operating of working capital. Now I will make you understand the difference between fixed capital and working capital. Fixed capital helps achieve what? The company's long term objectives. Working capital is Short for term. day to day working operation. short term objectives. Makes sense. ठीक है. Okay. So जब हम बोलते हैं हमें liquidity में crisis आया या किसी में आया, that is directly linked with what? Working capital. Liquidity. Okay. और So working capital is considered in liquidity. हाँ. है ना? So this is working capital का एक cycle जिसको हम कहते हैं which we will be coming across sooner. So I have a question. From where do we take out the working capital? As in, how do we like allocate that this is a working capital? Okay, I'll come to that. Okay. Now first, business शुरू करने में मुझे क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी लगती है? कैपिटल है, पैसे चाहिए स्टार्ट करने के लिए. कैपिटल इज बेसिकली फाइनेंस. ओके. सो कैपिटल चाहिए. क्यों चाहिए कैपिटल? For so many things, I have to like resources, like Perfect. salaries of So the. to buy resources. Okay. Salaries, सब everything उसमें is resources. correct, Infrastructure correct. is resources. Correct.
But now let us understand why a particular resource is classified as an asset for a long term basis, why a particular resource is classified as a asset for a short term basis, जो current assets में जाता है. So सब लोग ने financials देखे, ऊपर आता है नॉन करंट असेट्स, नीचे आते हैं करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स लेकिन क्या, विच विल गिव अस यूटिलिटी फॉर मोर देन वन पीरियड. करंट असेट्स लेकिन क्या, यूटिलिटी एक ही पीरियड का होता है. अभी टू हेल्प यू एक्सप्लेन, मैंने अगर एक बिल्डिंग खरीदी, उसमें प्लांट लगाया विच हैज अ कैपेसिटी टू रन फॉर 10 years, क्या वो प्लांट चालू चलाने से मुझे एक साल में उसकी यूटिलिटी खत्म हो रही है क्या? परफेक्ट. तो वो लॉन्ग टर्म नॉन करंट में आ गया. अभी मैंने माल किसको बेचा, एग्जांपल मैंने आकांक्षा को माल बेचा, आकांक्षा इज अ डेटर फॉर मी. क्या आकांक्षा ने मुझे पैसे देने के बाद उससे मैं वापस पैसा सेम चीज का मांग सकता हूँ? खत्म. सो वन टाइम यूटिलिटी. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉन करंट एंड अ करंट असेट. ओके, अब नॉन करंट असेट समझा. So majorly to occupy my non-current assets, what I take is fixed capital. Okay. So from that perspective, let us understand capital employed. I hope अभी self funds, borrowed funds समझ में आ गया. Self funds में हमें category समझ में आई, capital और reserves and surplus. Borrowed funds में हमें समझ में आ गया long term debt और short term debt. Short term debt यहाँ पे only for the purposes of the assignment. हम लोग इसमें ओवरड्राफ्ट इंक्लूड करते हैं. सो बेसिकली ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म पेमेंट्स टू बैंक्स. ओके, सो बेसिकली सो दैट इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो भी सब इसमें आ जाएगा? ना, नहीं आएगा. इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस. नॉट एन एक्सपेंस, समझ गया. ठीक है. ओके, दिस इज अ लायबिलिटी. ओके, अंडरस्टैंड दिस. सो फंड्स में क्या आ गया वापस एक बार, सेल्फ फंड्स आ गए और बोरोड फंड्स आ गए. कैपिटल एम्प्लॉयड का लॉजिक समझ में आ गया. हम लोग ने एक पार्ट कवर किया. अब जब हम रिटर्न कहते हैं, रिटर्न इज व्हाट बेसिकली प्रॉफिट. अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? सो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग Revenue मार्जिन. minus expenses. ओके, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट फॉर अस, एज सिंपल एज दैट. करेक्ट. बट उसमें भी हम लोग ने और थोड़े से हिस्से बना दिए. ओके, सो व्हेन वी से रेवेन्यू माइनस expenses, that is operating margin. Okay. Now अभी इसमें what we have decided कि भाई expenses, कुछ expenses are direct expenses, कुछ are non direct expenses. ठीक है. Okay, let us take example manufacturing. रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो मैं अगर कुछ क्या बोलते हैं पतरा लेता हूँ, आई एम टेकिंग सम मेटल, आई एम टेकिंग सम प्लास्टिक, आई एम टेकिंग सम चिप्स. ओके, which are very essential and crucial for manufacturing of that robot. So is that a direct expense? Absolutely yes. अगर मेरे पास यही नहीं रहेंगे तो रोबोट में मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा क्या? कमिंग टू द लेबर, अगर असेंबली लाइन पे मेरा आदमी वहाँ पे खड़ा रह के सब चीजें लगाएगा नहीं, तो क्या वो रोबोट मैन्युफैक्चर हो पाएगा? ओके, सो इसमें हम लोग ने बाइफरकेट किया ये एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस को जब हम लोग बाइफरकेट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ में आ गया कि विच आर वेरी क्रूशियल, विदाउट विच द कमोडिटी कैन नॉट सेल इटसेल्फ. करेक्ट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेकिन क्या, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर वर्क फ्रॉम दिस. ओके, whichever expense is not a direct expense is a indirect expense. For example, like salaries of someone sitting in office, admin office. So अभी एग्जांपल हमारे इसमें क्या मैंने सेल्स के पर्सन को सैलरी नहीं दी, ओके, तो क्या मैं रोबोट मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाओगे? परफेक्ट. सो जो भी बेसिक कमोडिटी को सेलेबल करने के लिए होता है वो डायरेक्ट हो गया. परफेक्ट. सो टू मेक दैट थिंग पॉसिबल, कमोडिटी पॉसिबल, सेलेबल. ओके, ये हो गया डायरेक्ट. अब मार्केटिंग के लिए पब्लिक है, ओके, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कमोडिटी को सेलेबल बनाने के लिए? नहीं, वो इनडायरेक्ट है. परफेक्ट, तो वो इनडायरेक्ट हो गया. प्लांट का डेप्रिसिएशन हो गया, वो भी इनडायरेक्ट हो गया. परफेक्ट.
तो तुम लोग को समझ में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट Yep. गॉट इट। तो अभी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर करते हैं इनडायरेक्ट क्यों? निकलता है। बिकॉज मुझे समझना है मेरे कोर एक्चुअल धंधे से कितना निकल रहा है प्रॉफिट। अच्छा हो गया। ओके, तो दैट इज ग्रॉस मार्जिन। हाँ समझ गया। समझा? ग्रॉस मार्जिन इज बेसिकली योर व्हाट यू कॉल ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस रेवेन्यू। रेवेन्यू। हाँ, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अंडरस्टैंड करते हुए। ठीक है। पर ये ऑपरेटिंग मार्जिन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, राइट? लेकिन दिस इज मच मोर होलसम। तो इसमें से अगर मैंने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का एलिमेंट निकाला तो बचा कौन सा एलिमेंट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। All those expenses incurred just for the purposes to sell that commodity इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है। ये हो गया कमोडिटी को सेलेबल बनाने के लिए, और वो हो गया बेचने के लिए। बेचने के लिए। फर्क समझ में आ गया? Absolutely, yes. Okay. ओके, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल समझ में आ गया? ओके, नाउ जस्ट फ्रॉम ग्रॉस मार्जिन मेरे को फिर से एक बार समझाओ। ठीक है, बताता हूँ। एक ग्रॉस मार्जिन, मैं जो ग्रॉस मार्जिन का समझ है मेरा, इसलिए आई दिस इज जस्ट वांट स्ट्रिक्टली टू। रिलेटेड टू प्रॉफिट। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू प्रॉफिट। ओके, बट ये प्रॉफिट में तुमने डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों डाला हुआ इनडायरेक्ट है। कॉस्ट एक्सपेंसेस दोनों किए। समझ गया। इसमें सिर्फ मैंने Direct. सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट पे बेसिस पे रेवेन्यू के बेसिस पे परफेक्ट, लिया है। तो अब बचा क्या? बचा Indirect. indirect. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर करना, वो दैट समझ इज चल। इनडायरेक्ट चल ठीक है। एक्सपेंसेस। ओके ओके, ओके। राइट, सो बेसिकली अगर हमें Recording पता लगाना हो समझा। कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में खर्चा कितना आया, उसके लिए हमें ग्रॉस मार्जिन निकालना पड़ेगा। और अगर हमें ये चेक करना है कि हमने और ऑपरेशनल में कितना खर्चा किया, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स। सो बेसिकली एंड अगर टोटल ही खर्चा निकालना है तो तो फिर plus ऊपर का ऑपरेटिंग मार्जिन। नहीं, अभी बता दो थोड़ा सा ट्विस्ट। ग्रॉस मार्जिन क्या क्या मेजर करता है? प्रॉफिट मेजर कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या मेजर कर रहा है? प्रॉफिट। पर ये प्रॉफिट आफ्टर कैलकुल डिराइविंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट Correct. एक्सपेंसेस। दिस इज ओनली आफ्टर डिराइविंग Direct, डायरेक्ट yes. एक्सपेंसेस। तो हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेशियो निकालते हैं। सो दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर टू सेल्स। सो ये प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं है, ये एक्सपेंस का एलिमेंट है। फर्क समझ में आ गया? बिकॉज ये प्रॉफिट है और ये तो एक्सपेंस है ना। ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है बिकॉज जितना लग रहा है और जितना तुम उसको बेच रहे हो। ओके ओके। सो अभी हम लोग ने राइट आर्म समझ लिया। कौन सा राइट आर्म समझ लिया? रिटर्न का, प्रॉफिट का। ओके, अभी इसमें दूसरा एलिमेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने समझ लिया व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये प्रॉफिट समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे मेजर क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को मेजर कर रहे हैं किसके साथ? कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ जितना पैसा लगाया है। पर तुम पैसा लगा के क्या करते हो? रिटर्न चेक करते हैं। पैसा लगा के क्या करते हो? पैसा लगा के होप करते हैं कि वो पैसा से ज़्यादा पैसा कमा सके। क्या करते हो? अच्छा, मतलब खर्चे करते हैं और क्या करते हैं क्यों? ताकि वी कैन सेल द प्रोडक्ट एंड देन अर्न तो फ्रॉम इट। बेसिकली पैसा लगाते हैं ताकि धंधा कर सके। हाँ। धंधा यानी सेल्स, हाँ। बराबर। तो सेल्स कितना हो रहा है भाई? तो रेवेन्यू। प्रॉफिट इज अ डेरिवेटिव फैक्टर ऑफ सेल्स। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अभी रेवेन्यू के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, ओके। बराबर। तो वो रेवेन्यू मैं कैपिटल एम्प्लॉयड पैसा जो लगाया उस पर कितना बेच सकता हूँ, दिस आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट। रेवेन्यू क्या बोलना? ओके। समझ रहे हो? अगर मैं 100 रुपये लगाए हैं बिजनेस में, क्या मैं 500 का माल बेच सकता हूँ? क्या मैं 1000 का माल बेच सकता हूँ? क्या मैं 5000 का माल बेच सकता हूँ 100 रुपये के ऊपर? सो दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अंडरस्टूड? अभी रेवेन्यू ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अलग अलग फैक्टर्स है, ओके, जो अभी हम लोग को असाइनमेंट पर्पसेस के लिए नहीं बोल रहे। सो लेट्स नॉट गेट इनटू ठीक है। कंफ्यूज हो जाएगा। अभी असाइनमेंट पर्पस के लिए ये भी चीज है नहीं हम लोग को। ठीक है। स्टिल आई एम ब्रीफिंग यू सो हाँ, दैट ठीक है, यू just गेट let us एन know. अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इन्वेंटरी डेज, लेकिन क्या भाई कितने दिन में मेरी इन्वेंटरी मेरे पास रहेगा। रहती है? हाँ, ठीक है। रिसीवेबल डेज, लेकिन क्या मुझे कितने दिनों में पेमेंट सेल्स करने के बाद पैसा रियलाइज पैसे होता है? हाँ, दैट इज रिसीवेबल डेज। एक बार फिर से रिपीट करना उनका ये वाला।
इन्वेंट्री डेज है ना, कितने दिन में इन्वेंट्री होल्ड करता हूँ मेरे पास, दैट इन्वेंट्री इज फर्दर डिवाइडेड, लेकिन जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश और फिनिश गुड्स। ओके, इससे मुझे क्या समझता है कि भाई अगर बाहर मार्केट में शॉर्टेज हो या प्राइसेस बढ़ जाए तो मुझे कितना ही होल्ड करना है ताकि मैं मेरी प्रोसेसिंग चालू करते रहूँ, ये रुकने नहीं चाहिए। सेमी फिनिश गुड से मुझे क्या समझ में आता है जनरली कि भाई मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितना देर लगता है। फिनिश गुड से मुझे क्या समझ में आता है कि मुझे डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या मेरे पास एनी टाइम उतनी इन्वेंट्री है क्या। So when we talk about stocks, do we talk about finished goods? When we talk about stocks, we talk about all these All three. these three. Okay. Yes. This is a further segmentation into it so as to just provide a better understanding. ठीक है. ठीक है. Okay. Now coming to receivable days. Okay. नंबर ऑफ डेज। मैंने अभी वेन्यू सेल्स ऐसा तो हमेशा होता नहीं कि सामने वाला कैश ही दे, कभी कभी बोलेगा कि भाई मुझे 10 दिन का 20 दिन का दे दे पेमेंट। सो द पॉइंट कि मुझे कैश जनरेट करने का और द पॉइंट ऑफ सेल्स, इसमें जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट इज रिसीवेबल डेज। Correct. अंडरस्टूड। नाउ पेएबल डेज, द मोमेंट आई टेक इन सम मटेरियल and the delay in making the payment to them, because I am also receivable for somebody, na? Right. Right. So Because that you're becomes purchasing. my payable days. Understood? हम्म. So ये तीनों concept explain हो गए। तो टेक्निकली फर्म फोकस करते हैं कि रिसीवेबल डेज जो है वो कम हो और पेएबल डेज ज़्यादा हो। ताकि आपका कैश फ्लो ठीक रहे। Receivable days is something that units are dispatched or something, right? To be more क्या हुआ? specific. Dispatch जब होता है वो consider होता है क्या? Dispatch नहीं, जब मैंने सेल बुक कर ली it does not mean कि भाई मैंने dispatch कर लिया, यहाँ पे कांड पे ठीक है, not necessarily। बोलने घूमता क्या? हो जाता है ऐसा कि- हाँ हो गया हो गया हो गया। आगे और खींचना पड़ेगा। नहीं छोड़, रहने दे, इस पे थोड़ा खेल लेते हैं, नीचे थोड़ा घिसमिट हो जाएगा। आपको टर्न करना था क्या इसको? क्या करना है? फ्लिप करना है ना? हाँ पर नहीं हो रहा वो, नहीं हो रहा, टूट जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं करना नहीं, है नहीं, वो ताकि वो रेलेवेंस दिखता है, वो वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो हार्ड नहीं हो हो रहा है। रहा है। ठीक है, तो अभी व्हाट इज दिस सिग्निफाई, इसका मीनिंग समझा? Absolutely. तुम दोनों चीज़ों खड़े हो जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन ऑफ द थिंग्स। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या बोलता है कि भाई मेरे पास इन्वेंट्री कितने दिन रहती है, मेरे पास रिसीवेबल से पैसा कितना दिन में रहता है, प्लस मैं पेबल्स को कितने दिन में देता हूँ। इसका अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो दैट बिकम्स माय वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड कैपिटल, हाउ मच अमाउंट डू आई नीड टू कीप माय बिजनेस रनिंग। एग्जांपल पकड़ते हैं, इन्वेंट्री डेज आर 30, रिसीवेबल डेज आर 60, पेबल डेज आर 60। ओके, 30 प्लस 60 माइनस 60 बराबर। लेकिन क्या, मैंने इससे पैसा लिया, इसको 60 दिन में लौटाना है, सॉरी इसे माल लिया 60 दिन में लौटाना है, तो मुझे क्रेडिट मिला, तो मेरे लिए तो फायदा है, तो फायदा है तो माइनस करूंगा। अच्छा, घाटा है तो प्लस करूंगा। हाँ, अब घाटा है, मेरे पास इन्वेंट्री बची है, जब तक वो इन्वेंट्री बिकती नहीं बाहर मार्केट में, मुझे पैसा मिलता नहीं, तब तक वो मेरे लिए घाटा, मेरा पैसा ब्लॉक हुआ, तो 30 दिन। रिसीवेबल, इन्वेंट्री बेच दिया पर पैसा आना बाकी है, जब तक मुझे पैसा रियलाइज नहीं होता तो ये भी 60 दिन घाटा ही है। 30 प्लस 60, इसलिए मैंने इसको प्लस प्लस किया, 90 हो गया माइनस 60, कितना बचा? 30 डेज। तो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना हुआ? 30 दिन। तो साल भर में मुझे कितना भी वर्किंग कैपिटल लगता है, दैट इज बेसिकली 30 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल लगता है मुझे। अंडरस्टूड? तो 30 डेज का जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब 30 डेज 30 डेज इज द रोलिंग अमाउंट। इज द प्रोडक्शन ऑफ 30 डेज और क्या? इट इज नॉट प्रोडक्शन ऑफ 30, इट इज रोलिंग ऑफ 30 डेज। रोलिंग ऑफ 30 डेज। हाँ,
सो मैंने एग्जांपल विनय से आज माल लिया, ठीक है, मैं आकांक्षा को सॉरी मैंने अदिति को दिया प्रोडक्शन के लिए, आदिति को दिया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, आदिति ने वो मुझे 30 दिन में दिया, बाद में मैंने आकांक्षा को माल बेचा, आकांक्षा मुझे बोली कि भाई मैं तुझे 60 दिन के बाद दूंगी, 30 + 60 हो गया 90 days, आई एम नॉट एबल टू जनरेट कैश, ओके, 90 days के बाद मुझे पैसा मिलेगा, बट आई हैव टू पे हिम विद इन 60 days, सो मेरे पास एक्स्ट्रा, लेकिन 30 दिन तो मेरे पास डेफिसिट हो गया ना, तो 30 दिन के लिए मुझे पैसा जुगाड़ना पड़ेगा, जो जुगाड़ है दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल साइकिल, अंडरस्टूड? समझ गया, वेरी नाइसली पुट ब्रो। अभी वर्किंग कैपिटल हम लोग का ये रिजॉल्व हो गया, दिस आर्म आल्सो वी हैव अंडरस्टूड इन डिटेल। लेट्स मूव टू द लिक्विडिटी साइड ऑफ इट। लिक्विडिटी में अभी 2 रेशोज हमें दिए हैं, वन इज करंट रेशो, द अदर इज एसेट टेस्ट रेशो। करंट रेशो इज बेसिकली सेइंग करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये नीचे वाला कंसेप्ट समझा तुम लोग को? हाँ। सेम कंसेप्ट करंट रेशो में लगता है। अच्छा, करंट रेशो क्या कहता है कि भाई जितने तुम्हारे पास करंट असेट्स है, क्या वो सक्षम है तुम्हारे करंट लायबिलिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए? एग्जाम्पल, मेरे पास इन्वेंट्री है 100 रुपए की, एग्जाम्पल पकड़ते हैं, इन्वेंट्री 100 रुपए की, डेटर्स है 200 के, पेबल्स है 150 के। अब मुझे बताओ इसका करंट रेशो कितना हुआ? 300 डिवाइडेड बाय 150, 2। फॉर्मूला के हिसाब से करंट असेट्स कितने हुए मेरे पास? 300, so which is 300, 2:1. और करंट लायबिलिटीज कितने हुए? 152:1 हो गया ना, तो करंट रेशो क्या है? 2। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इट? अभी समझो, ये क्या बोलता है कि भाई अब मैं धंधा तो कर रहा हूँ बराबर, पर अगर धंधा इमीडिएटली बंद करना हो, या फिर धंधे में ऐसा बहुत बार होता है कि भाई पैसे की बहुत फट करके डिमांड आ जाती है, क्या वो डिमांड में सेटिस्फाई कर पाऊंगा? यस। तो मेरा इन्वेंट्री में 100 रुपये पड़ा है, मुझे डेटर्स, लेकिन आकांक्षा से 200 रुपये आना बाकी है, 300 रुपये है, 300 रुपये का मेरे पास टोटल आज के दिन पे हाथ में ताकत है, ठीक है, क्या वो ताकत से मैं इसको विनय को पे कर सकता हूँ क्या? यस। इफ मैं पे कर सकता हूँ तो इसका मतलब क्या, ये रेशो 1 के अबव होना चाहिए। और अभी Current करंटली इस ratio केस में ट्वाइस द हमारे पास हाँ, कैपेसिटी है। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया? यप। ओके, अभी यही लॉजिक को हम लोग आगे खींच के लेके जाते हैं। अब एसिड टेस्ट रेशो क्या बोलता है? करंट असेट में से मैं इन्वेंट्री माइनस करूंगा और उसको मैं करंट लायबिलिटी से डिवाइड करूंगा। अभी इसका लॉजिक भी बताता हूँ, पर जस्ट अभी यहाँ के कैलकुलेशन में समझना। क्या आया यहाँ पे 200 और यहाँ पे क्या आया 150 बराबर, बिकॉज़ इन्वेंटरी नहीं ले रहा। हाँ, तो ये कितना हुआ रेशो? 1:1.33 1.33 रेशो हो गया। अभी जस्ट अंडरस्टैंड, क्या एसिड टेस्ट रेशो 1 के अबव रहा तो मुझे बेनिफिट है? हाँ, क्यों? बिकॉज अभी भी यू आर एबल टू पे योर लायबिलिटीज मोर देन 1 ना। नहीं, पर करंट असेट्स तो मैंने यहाँ पे कवर किया। हाँ, What is the what is the relevance of reducing the See, inventory? inventory is अगर not suppose always कल sellable, no? कल अगर I guess. पूरी इन्वेंट्री जल के खत्म हो गई, हाँ, या फिर बेच नहीं पाते ना एकदम से कोई inventory तरीके से तो। वो मैं बेच ही नहीं पाऊँ, एंड इट बिकम्स सपोज कोई रूल चेंज हो गया गवर्नमेंट का, मैं सामान बेच ही नहीं सकता अब, तो उसको माइनस करके एसिड टेस्ट इज बेसिकली कि टू सी दैट स्टिल विदाउट एनी इन्वेंटरी विल यू सर्वाइव और नॉट, इज दैट राइट? The logic is somewhere right, but not 100%. ओके गॉट इट, ओके इसमें थोड़ा सा और एक एनलाइटन करते हैं। अच्छा ठीक है। जब ये डेटर्स लिखा है, ओके, सो आकांक्षा से मुझे पैसे आने बाकी है, तो आई हैव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ 200 रुपीज। सो एक्चुअली वो इन्वेंट्री ऐसी पड़ी हुई है, हाँ मेरे पास असेट है, पर मैं बेच नहीं पाया। कैन दैट असेट बी मटेरियलाइज्ड? नॉट येट। नॉट येट, परफेक्ट। बट अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से एज पर AS2 और IFRS के हिसाब से 2, ओके, वो क्या बोलता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट
realizable value, whichever is lower. net लेकिन realizable value हाँ, अगर इसके what is second- net realizable value? हम्म, Example, मैंने आज ये फोन, example, I am a dealer of iPhones, okay? वो आईफोन की कॉस्टिंग मुझे गिरती है 50,000 हम्म, पर ये मार्केट में मैं बेचता हूँ, ओके? अब नया वर्जन आया, नाउ इफ आई एम सेलिंग इट इन द मार्केट, आई एम सेलिंग इट फॉर 60,000. हम्म, However, to sell it for 60,000, I have to bear marketing expenditure of 15,000. हम्म, तो नेट मुझे कितना मिला उसका? 15 45. 45 45 हो गया 45 और मुझे कॉस्ट कितनी है आईफोन की? 50 तो 5 तो इन्वेंटरी में वैल्यू किस पे करूंगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल द वैल्यू, दैट इज 45. 45,000 सो अंडरस्टूड? या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी अंडरस्टूड. पर स्टिल हम लोग एसेट टेस्ट रेशो में हाथ जलाते हैं, बोलते कि भाई इन्वेंटरी को नहीं पकड़ूंगा बिकॉज यू कैनॉट एनकैश द इन्वेंटरी इमीडिएटली. immediately Asset is more liquid, right? क्या? ज़्यादा liquid है ना? हाँ. I guess मेरे हिसाब से asset test ratio has been derived later on when people realize कि inventory is not something that you can immediately sell and get your cash in hand, and then they deducted it and created another ratio which is Perfect. more reliable in calculating your Because वो- liquidity of the company कि Perfect. भाई तुम कितने जल्दी cash off कर सकते हो अपने liabilities को, current liabilities को. अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 50,000 का आईफोन का कॉस्ट है, 60,000 मैं बेचूंगा, 15,000 मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करनी पड़ेगी. हम्म, वो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करके वो मार्केटिंग का रिजल्ट आने को देर लगेगा कि नहीं? देयर इज अ gestation period, right? I don't know how much is the gestation period right now, but because of that gestation period, that is not considered to be highly liquid. Okay? Yeah, And makes therefore we reduce it. right makes sense. Therefore it is asset test ratio. Right. इसका relevance समझ में आ गया? इसको वही बोलते हैं ना quick Quick ratio, quick perfect. ratio. Okay? ये समझ में आ गया? Okay. Now coming to the last part, stability. Stability में दो चीजें आती हैं. But stability always revolves around what? Coming to the original fund. Capital. Okay? Correct. अभी स्टेबिलिटी हमेशा गिनी जाती है कैपिटल से. अब कैपिटल में मैंने क्या बोला? देयर आर टू पार्ट्स. Self funds and borrowed funds. नाइस. सेल्फ फंड्स लेकिन क्या? Equity, funds, equity हो गया. reserves and surplus. परफेक्ट. बोरोड फंड्स लेकिन क्या? Short term Short term loans, loan. long term loans. loans As in long term debt and short term debt. परफेक्ट. ओके. सो जब मैं सेल्फ फंड्स की बात करता हूँ और जब मैं गियरिंग की बात करता हूँ, अब देखो हर एक बिजनेस का एक पर्टिकुलर एंगल रहता है. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं मेरी बिजनेस जब रन कर रहा हूँ, हाउ मच ऑफ फंड्स एम आई पुटिंग, हाउ मच ऑफ एक्सटर्नल फंड्स एम आई बोरोइंग. ओके. सो गियरिंग हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बोरोइंग रेशियो आउट ऑफ इट. सो जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट कितना है, अंडरस्टूड? Good. दैट इज गियरिंग रेशियो. What do people consider better? Having more of debt or more of वही बताता हूँ अभी. अभी तुम लोग को 3 एग्जांपल्स देता हूँ. ओके. 1 रेडी लोअर है मेरे पास, न्यूट्रल है मेरे पास और ज़्यादा है मेरे पास. गिव योर ओपिनियंस, इंडिपेंडेंट ओपिनियंस समथिंग. यार, debt में ना हमें constant- More than 50%.